Welcome to Dear English. Hello everyone, I am Swapna and we are going to do class 10 CBSE chapter A Triumph of Surgery from book A Footprints Without Feet written by James Herriot. So I am going to give you detailed explanation along with word meanings and question answer. So watch the video till the end. So as I told you, this is a story written by James Herriot, who is a veterinary surgeon and a writer. Veterinary surgeon. Who are veterinary surgeon? Veterinary surgeon are those who treats animals. He used his many years of experiences to write a series of books, each consisting of stories about animals. So this is also a story about a dog named Tricky, and Mr. Herriot acted as a doctor in this story. A triumph of surgery. So let's start. What do you mean by this word triumph? Triumph means to victory, to succeed, to win, and surgery. Let's see whose surgery is being done here. So as I told you, this is a story about a dog. A story about a small cute dog named Tricky. His owner's name is Mrs. Pumphrey and Mr. Herriot is Tricky's doctor. Mrs. Pumphrey is a rich lady who loves his dog very much, and this excessive love leads to drastic consequences. ये कहानी एक छोटे से प्यारे से क्यूट से डॉगी की है जिसका नाम ट्रिकी है. मिसेस पम्फ्री उसकी मालकिन है और वो कुछ उसको एक्स्ट्रा ही प्यार करती हैं और इस एक्स्ट्रा प्यार की उन्हें एक्स्ट्रा कीमत भी चुकानी पड़ी. सो लेट्स बिगिन. लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ. हियर आई स्टैंड्स फॉर द नरेटर. नरेटर इज हियर मिस्टर हैरियट. यस, द राइटर ऑफ द स्टोरी मिस्टर हैरियट, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर है. वेटनरी डॉक्टर मैंने पहले भी आपको बताया था कौन होते हैं. वेटनरी डॉक्टर जो एनिमल्स को का इलाज करते हैं, जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं. वह अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी मिस्टर हैरियट ने को ट्रिकी दिखा मिसेस पम्फ्री के साथ. उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और वह ट्रिकी को देखकर जैसे हैरान हो गया. वो बहुत मोटा हो गया था, उसकी आंखें लाल हो रही थी, वो बहुत थका हुआ लग रहा था. सो वो उसकी हालत बहुत ख़राब थी. सो आई स्टैंड्स फॉर नरेटर मिस्टर हैरियट हेयर. ही वॉज शॉक्ड टू सी ट्रिकी एज ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज. Tricky's eyes had become red and tongues lolled out from his jaws. So this means he was in a very bad condition. So what do you mean by bloated here? Bloated means excessive in size या बहुत मोटा. And sausage, it's an item of food in the form of cylindrical length of minced pork or other meat. So meat है sausage का मतलब. In short you understand. And bloodshot is inflamed or tinged with blood, typically as a result of tiredness. जैसे eyes में थोड़ी वो खून आ जाता, like that. And rheumy means watery. And what do you mean by lolled? Lolled means sit and stand or stand in a very lazy way. So वो बहुत lazy हो गया था ना, उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं बची थी. सो मिसेस पम्फ्री ने भी मिस्टर हैरियट को कहा कि उनका प्यारा ट्रिकी बहुत बीमार हो गया है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं बची. सो लुक एट दीज लाइन्स. मिसेस पम्फ्री hastened to explain. He was so listless, Mr. Herriot. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So question can come here. One question can come. Why was Herriot shocked? Mr. Herriot shocked to see this Tricky.
So you know the answer. Now, as I told you, Mrs. Pumphrey just gave explanation that this her doggy is very ill, और उनका प्यारा सा ट्रिकी बहुत बीमार हो गया, उसके पास कोई एनर्जी नहीं बची है. So listless, what do you mean by listless here? Listless means no energy left, lack energy, and malnutrition, lack of proper न्यूट्रिशन. तो मिसेस पम्फ्री को लगता था कि ट्रिकी को मैल न्यूट्रिशन है, मतलब लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन है. इसलिए वो क्या करती थी भाई, क्या करती थी, इसलिए उसकी हेल्थ बनाने के लिए मिसेस पम्फ्री उन्हें माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स खाने के अलावा देती थी. सोचो ज़रा, खाने के अलावा इतनी सारी चीज़ें उनको देती थी. और फिर क्या बोलती थी, कुछ नहीं, मैं तो ज़्यादा नहीं देती उसे, बस इतना ही देती हूँ. सो देन डॉक्टर आस्क्ड, डिड शी कट डाउन द स्वीट थिंग्स? सो एट दिस Mrs. Pumphrey replied, she did it for a while, but she can't be strict and refuse Tricky. He loves chocolates and cream cakes. देखो जनाब को ज़रा, चॉकलेट्स और क्रीम केक्स ट्रिकी को पसंद है, इसीलिए मिसेस पम्फ्री उसे देती भी हैं. मिसेस पम्फ्री ने कहा कि कुछ दिन तक तो वो स्ट्रिक्ट रही, पर फिर उनसे स्ट्रिक्ट रहा नहीं गया, वो ट्रिकी को मना नहीं कर पाती. सो आर यू वॉचिंग दिस एक्सेसिव लव एंड ओवर पैम्परिंग एंड ओवर फीडिंग? दिस ओवर फीडिंग, ओवर पैम्परिंग हैज़ मेड ट्रिकी इल. मिस्टर हैरियट को तब समझ में आया असली मामला क्या है. ट्रिकी तो एक लालची डॉगी है ही है, और मिसेस पम्फ्री भी कम नहीं है, वो भी अपने डॉग को ओवर पैम्पर करती है, ओवर फीड करती है. और उन्हें ये भी लगा कि मिसेस पम्फ्री ने और कितनी बातें छुपाई होंगी. देन मिस्टर हैरियट अगेन क्वेश्चन दैट वेदर शी इज़ गिविंग हिम एक्सरसाइज. मिस्टर हैरियट ने पूछा कि ट्रिकी को एक्सरसाइज करवाती हैं कि नहीं. तो मिसेस पम्फ्री कहने लगी कि कभी कभार वो वॉक पर ले जाती हैं, पर वो रिंग थ्रोइंग वाली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनके माली हॉचकिन, जो कि वो ये थ्रोइंग एक्सरसाइज करवाते हैं, उसको मस्कुलर पेन हो रहा है. लम्बैगो मीन्स मस्कुलर पेन और पेन इन मसल. So now Mr. Harriet was little severe and told that if she didn't control Tricky's eating habit and increase his exercise, then Tricky would be seriously ill. He even asked Mrs. Pumphrey to harden her heart. अब थोड़ा सा मिस्टर हैरियट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर बोले कि यदि आपने ट्रिकी के खाने पर कंट्रोल नहीं किया और उसे एक्सरसाइज नहीं कराई तो ट्रिकी बीमार पड़ जाएगा. मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्री को थोड़ा मजबूत होने को कहा. सो वन क्वेश्चन कैन कम, व्हाट ऑल सजेशन डिड मिस्टर हैरियट गेव टू मिसेस पम्फ्री? सो नाउ यू नो द आंसर. मिसेस पम्फ्री ने भी ये माना कि मिस्टर हैरियट गलत नहीं बोल रहे हैं, पर उनके लिए ट्रिकी को मना करना मुश्किल है, या मतलब उनके लिए स्ट्रिक्ट हो पाना बहुत मुश्किल है. मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्री को फिर जाते हुए देखा. ट्रिकी ठीक से तो चल भी नहीं पा रहा था. हाँ, लुक एट दीज लाइन्स. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग. टॉटरिंग मीन्स मूव इन अ फीबल वे. सो मिसेस पम्फ्री का ये भी मानना था कि हैरियट गलत नहीं बोल रहे थे, पर ट्रिकी को वो मना नहीं कर सकती. फिर जब वो जा रही थी, मिस्टर हैरियट ने देखा मिसेस पम्फ्री को जाते हुए, तो ट्रिकी तो भाई सही से चल भी नहीं पा रहा था. ही वॉज टॉटरिंग. टॉटरिंग मीन्स मूव इन अ फीबल वे. सो along with his tweed coat, ट्रिकी ने एक कोट भी पहना था.
ट्रिकी एक कोट पहना था और वो ठीक से भी नहीं चल पा रहा था। नरेटर कहते हैं कि ट्रिकी के पास ऐसे बहुत से कोट हैं, उसकी अलमारी पूरी कोटों से भरी हुई है। ठंड के लिए कोट, हाँ, बारिश के लिए कोट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ही न्यू दिस फैक्ट, he knew this Mr. Harriet knew this fact that he would be receiving call, and it happened after few days only. The expected call came from Mrs. Pumphrey. This Mr. Harriet knew this fact because Tricky was too ill, and therefore he knew the fact that Mrs. Pumphrey is going to call Mr. Harriet. So मिस्टर हैरियट को पता था कि मिसेस पम्फ्री का फ़ोन ज़रूर आएगा, क्योंकि ट्रिकी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मिसेस पम्फ्री का कॉल आया और फ़ोन पर वो रोने लगी। लुक एट दीज लाइन्स, द एक्सपेक्टेड कॉल, this line, the expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. What do you mean by distraught? Distraught means upset or worried. So वो बहुत worried थी, बहुत upset थी, बहुत दुखी थी। So Mrs. Pumphrey told that Tricky is vomiting, he is refusing his favorite dishes, he didn't want to go for walks or do anything, and he spent all his times lying. Means he had no energy left. So Mrs. Pumphrey ने कहा कि ट्रिकी बहुत बीमार हो गया है, वो कुछ नहीं खा रहा है, फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा है, वोमिटिंग कर रहा है और पूरा दिन लेटा रह रहा है। नाउ अब क्या हुआ? नाउ मिस्टर हैरियट केम फॉर हिज rescue. He had already made plans that only way to get Tricky out well is to get him out of the house for few days. So Mr. Harriet को पता था कि ट्रिकी को सही करने का एक ही रास्ता है, ट्रिकी की घर से दूरी। अब क्या भाई, मिस्टर हैरियट ने सजेस्ट कर दिया कि मिसेस पम्फ्री को कि ट्रिकी को 15 डेज के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। द पुअर लेडी swooned. Look at these lines. The poor lady almost swooned. She was sure that he would pine and die if he did not see her every day. What do you mean by swooned? Swoon means total or partial loss of consciousness, and pine means cry. So lady को तो बिल्कुल ही बुरा हाल था। उसका मानना था कि यदि ट्रिकी उसे ना देखे तो वो रो कर मर जाएगा। बट हैरियट ने कहा कि ट्रिकी को बचाने का यही एक रास्ता है। अब क्या, पूरा स्टाफ जुट गया सामान लाने में। उसकी फेवरेट कुशन, टॉयज, नाइट बेड, डे बेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरी गाड़ी सामानों से भर गई। अब हैरियट को लगा कि इससे ज़्यादा सामान कार में तो नहीं आ पाएगा, सो वो चल दिए। और लास्ट में मिसेस पम्फ्री भी रोते रोते गाड़ी के पीछे आई और कुछ कोट गाड़ी की खिड़की से अंदर फेंके। सो सारे रो रहे थे, सब रो रहे थे। हाँ, सो क्वेश्चन कैन कम, how did Mrs. Pumphrey and her servant behave when Tricky was being taken to hospital? Now you all know the answer also. So now what happened? Now when they reached the surgery, all other dogs surged around me. Look at these lines. At the surgery, the household dogs surged around me. So what do you mean by this word surge? Surge means suddenly, move suddenly and powerfully. Means सारे dogs मिस्टर हैरियट के पास सडनली आ गए। जैसे कोई मालिक आता है तो प्यार करने के लिए सारे आ जाते हैं ना, तो उसी तरह सारे डॉग बस सडनली मिस्टर हैरियट के पास आ गए। और फिर उन्होंने ट्रिकी को देखा। ट्रिकी भी उनको देख रहा था, वो तो बिल्कुल हेल्दी डॉग से, ट्रिकी वीक था, ट्रिकी भी उसे
उन्हें देख रहा था और उन्होंने भी ट्रिकी को देखा। फिर सारे डॉग्स उसे स्निफ करने लगे। व्हाट डू यू मीन बाय स्निफिंग? स्निफिंग मीन्स ड्रॉ अप एयर ऑडिबली थ्रू द नोज टू डिटेक्ट अ स्मेल, टू स्टॉप इट रनिंग और टू एक्सप्रेस कंटेम्प्ट। मतलब जैसे डॉगी सूंघते हैं ना, उसी को इन सिंपल वर्ड्स आप स्निफिंग सोच लो। सो वो स्निफिंग करने लगे और सूंघने लगे, और ट्रिकी तो बहुत ही कमज़ोर था। हाँ, उसको उसमें एनर्जी नहीं बची थी, तो उसको उन सारे डॉगीज़ को वो बड़ा अनइंटरेस्टिंग लगा, बड़ा सा बोरिंग लगा, तो वो सारे चले गए। अब नरेटर ने उसके लिए बेड लगाया और 2 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं दिया। 2 दिन तक नरेटर ने ट्रिकी को कुछ भी खाने को नहीं दिया, और थोड़ा मीन्स उसे खूब सारा पानी पिलाया। 2 दिन तक खाने को नहीं दिया एंड खूब सारा पानी पिलाया। 2 दिन बाद वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगा, वो इधर उधर घूमने लगा, सो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगा। एंड देन 3rd day he began to whimper. What do you mean by whimper? Whimper means make a series of low feeble sounds expressive of fear, pain or unhappiness. Means धीरे धीरे, whimper means धीरे धीरे भौंकने लगा। अब उसने दूसरे डॉग्स की भी आवाज़ सुनी। तब हैरियट ने दरवाज़ा खोला और फिर उसने ट्रिकी वो दूसरे डॉग्स के पीछे पीछे चला गया। एंड ट्रिकी वॉज इमीडिएटली engulfed by Joe, greyhound and his friends, and Tricky also followed them. Means ट्रिकी भी उनको फॉलो के पीछे पीछे उसके चला गया। किसके पीछे? जो और ग्रेहाउंड के पीछे पीछे चले गए। अब शाम को मिस्टर हैरियट ने देखा कि जब सारे डॉगीज़ खाना खाकर चले गए, तब ट्रिकी उन बर्तनों को चाट रहा था। तब से धीरे धीरे ट्रिकी की रिकवरी शुरू हुई। उसे डॉक्टर ने कोई भी मेडिसिन नहीं दी थी। सो क्वेश्चन कैन कम, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी? नाउ यू ऑल नो द आंसर ऑफ इट। अब वो दूसरे डॉग के साथ खेलता था। हाँ, वो धीरे धीरे उसकी रिकवरी हुई और वो दूसरे डॉग्स के साथ खेलने भी लगा। सो लुक एट दिस लाइन्स। From then on his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. So सारे डॉग्स के साथ वो खेलता था, कूदता था, भागता था, और उसको कोई भी मेडिसिन मिस्टर हैरियट ने नहीं दी है। स्क्रिमेजेस मीन्स कंफ्यूज, स्ट्रगल और फाइट। जैसे मारपीट करते हैं डॉगीज, उसका मतलब स्क्रिमेजेस है। उसके बाद वो ट्रिकी तो रैट भी हंट करता था। हाँ, ही ऑल्सो स्टार्टेड हंटिंग रैट्स। सो वो मीन्स डॉग के साथ खेलता था, पूरा एन्जॉय करता था। ट्रिकी वॉज रिकवरिंग, बट मिसेस पम्फ्री को चैन कहाँ, इतना प्यार है उनके दिल में, चैन कहाँ। उन रोज़ फ़ोन 12 बार फ़ोन आता था और न्यूमरस क्वेश्चन पूछती थी। क्वेश्चंस चेंज किया है कि नहीं, वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनाए हैं नहीं कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमें ये पता है कि मिस्टर हैरियट ऐसा तो कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने तो मेडिसिन भी नहीं दिया, तो वो सारा ये क्वेश्चन एवॉइड करते थे और बस एक ही बात करते थे, हाँ वो ठीक हो रहा है, एक पॉजिटिव सा आंसर देते थे, वो रिकवर कर रहा है। लुक एट दिस लाइन, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर on convulsing rapidly. So what does this mean, convulsing? Convulsing means recover one's health and strength over a period of time after an medicine treatment or illness. So means recover करना, कि वो recover कर रहा है उनका ट्रिकी। So इससे तो उसे थोड़ी सी दिल में सुकून मिलता था।
सो अब क्या, अब वेरी फनी थिंग हैपेंड. What Mrs. Pumphrey started sending 2 dozens of eggs to build Tricky's strength. 2 दर्जन अंडे भेजने लगी. कौन? मिसेस पम्फ्री ट्रिकी का हेल्थ बनाने के लिए. अब ऑफ कोर्स हम लोग को ये पता है कि हैरियट तो ट्रिकी को ये सब देंगे नहीं. तो मिसेस पम्फ्री द्वारा भेजे गए अंडे मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर बड़े मज़े से ब्रेकफास्ट में खाते थे. अब कुछ दिन बाद वाइन भी आने लगी. किसके लिए? ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए. अब तो हैरियट की और मज़े. हाँ, और फिर भाई कुछ दिन बाद ब्रांडी भी आने लगी. क्या बात है भाई, ब्रेकफास्ट में अंडे, दोपहर में वाइन और रात में ब्रांडी. वाह वाह वाह. अब मिस्टर हैरियट तो ट्रिकी को परमानेंटली रखना चाहते थे. लुक एट दीज लाइन्स. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ permanent guest. So he wanted to keep Tricky as a permanent guest. So question can come, why was Mr. Harriet tempted to keep Tricky as a permanent guest? So now you know the answer of it. So even it was tempting, but still Mr. Harriet knew that Mrs. Pumphrey was suffering and he should not do like this. So he called Mrs. Pumphrey after a fortnight. Fortnight means 15 days, around 15 days के बाद मिस्टर हैरियट को लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. मिसेस पम्फ्री उससे बहुत प्यार करती थी और बहुत दुखी हैं. इसलिए डॉक्टर ने मिसेस पम्फ्री को फ़ोन कर दिया कि बस कुछ ही मिनट के बाद क्या हुआ, जैसे ही फ़ोन किया और कुछ ही मिनट के अंदर मिसेस पम्फ्री हाजिर हो गई. कुछ ही मिनट के बाद एक ब्लैक मेटल की गाड़ी आकर खड़ी हो गई. सो डॉक्टर को लगा भाई ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए. हाँ, इतना लालच नहीं करना चाहिए. वो तो बहुत दुखी होंगी मिसेस पम्फ्री. तो उन्हें फ़ोन कर दिया और कुछ ही देर बाद एक ब्लैक मेटल की गाड़ी आकर खड़ी हो गई. सो नाउ मिसेस पम्फ्री वॉज नर्वस. हाँ, बहुत नर्वस थी और पूछा कि उसका लाडला कैसा है. मिस्टर हैरियट ने भी पॉजिटिवली आंसर दिया और ट्रिकी को लेने के लिए घर के पीछे वाले गार्डन में चले गए. ट्रिकी दूसरे डॉगीज़ के साथ खेल रहा था. वो पहले से काफ़ी हेल्दी दिख रहा था. जब ट्रिकी को लेकर आए मिसेस पम्फ्री के पास, ट्रिकी बहुत खुश हो गया और ऐसा तो होता ही है. सो आपको भी पता है, हमको भी पता, डॉगीज़ अपने मालिक को देख के कितना खुश हो जाते हैं. और इतने दिन बाद देखा मिसेस पम्फ्री को, तो ट्रिकी तो बहुत खुश हो गया. और ऑफ कोर्स वी नो मिसेस पम्फ्री तो खुश थी ही. और वो कूद कर मिसेस पम्फ्री के पास चला गया. He was licking her face, barking in excitement. Mrs. Pumphrey, when she was leaving, she leaned out of the car, said with tears of joy in her eyes that this was a triumph of surgery. So, जैसे ही ट्रिकी को मिस्टर हैरियट लेके आए, वो जस्ट ट्रिकी कूद कर पम्फ्री के पास चला गया और उससे मीन्स बहुत प्यार किया. मिसेस पम्फ्री भी बहुत प्यार करने लगी. और फिर जब मिसेस पम्फ्री जाने लगी तो उनकी आंखों में आंसू था और वो बोल रही कि उसके पास थैंक्स का कोई शब्द नहीं है, धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है. सो और लास्ट में कहा दिस इज़ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. So one question can come here, why Mrs. Pumphrey thought that it's a triumph of surgery? So you know the answer now. So now the chapter ends. The theme of the chapter is about the blind love which we possess for whom we love the most. Mrs. Pumphrey had no idea that her blind and extreme love for her dog Tricky took him to trouble.
excessive love made Tricky sick and it became a reason for his illness. It can be concluded after reading that excessive love can take the form of excessive consequences. So love is good but excessive no, not at all. So ज़्यादा प्यार भी कुछ ठीक नहीं है. So do you think there are also parents like Mrs. Pomfrey? Do you think it? Do you think there are also parents like Mrs. Pomfrey? So do answer it and write in the comment section. So I hope you understand the chapter. Thank you. Bye bye.